Hello everyone. So today we are here with assertion reason questions. Okay, जो बोर्ड के में दो क्वेश्चन 100% आने हैं आपके पास. So we are here with a set of 20 questions for boards, right? So they are very important questions. Just go through it. It's very easy, right? So let's start with it. Now the first question is based on algebra chapter. So the first assertion given to you is that A और B दो मैट्रिक्स हैं और AB और BA both are defined. तो वी नो द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन राइट. सो रीजन क्या दिया है उसके लिए फॉर द टू मैट्रिक्स ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी. तो अब हमें ये बताना है इसका कि ये करेक्ट आंसर है या नहीं है. करेक्ट. सो लेट्स चेक फर्स्ट कि करेक्ट है या नहीं है. करेक्ट. So AB is defined if the number of columns in A is equal to number of rows in B. तो हमारे पास A जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर क्या है. उसका ऑर्डर है there are 2 rows and 3 columns. So what is the order? 2 by 3. So this is the number of rows and this is the number of columns. B मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास. There are 2 columns and 3 rows. So 3 by 2. That is the order for B. Now हमारे पास ए बी अगर हमें डिफाइन करना है तो पहले आप ए का ऑर्डर लिखिए और उसके बाद आप लिखिए बी का ऑर्डर. सो दिस टू नंबर्स अगर ये सेम है दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी देन इट इज डिफाइंड. ए बी इज डिफाइंड. So if we see here, yes, it is correct. So AB जो है वो defined है. Now let's go for BA. Is BA defined or not? BA का order पहले आप B का order लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे A का order. So again these two numbers are same. That is number of columns in B is equal to number of rows in A. तो BA is also defined, right? तो ये जो rule है multiplication का वो हमें reason में दिया है. सो द पॉइंट हियर इज कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हैं. दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड द रीजन दैट दे हैव गिवन इज कि ए बी को डिफाइन होने के लिए number of columns in A should be equal to number of rows in B. That is also true. So therefore we have the first option, that is both A and B are true and R is the correct explanation of A. देखिए आपको एक छोटा सा टिप देते हैं. टिप ये होता है पहले आप दोनों की इंडिविजुअलिटी चेक करिए स्टेटमेंट्स की. असर्जन को इंडिविजुअली ट्रीट करिए, आर को इंडिविजुअली ट्रीट करिए. पहले उनका चेक कर लीजिए दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं या वन ट्रू है या वन फॉल्स है. उसके बाद सी इज हाउ इज रीजन कनेक्टेड टू ए, इज इट कनेक्टेड और नॉट. तो फिर आप जाएंगे ए और बी ऑप्शन पे, नहीं तो सी और डी में से कोई भी मार्क कर दीजिए. तो फर्स्ट थिंग इज टू चेक द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच स्टेटमेंट, वैलिडिटी ऑफ ईच स्टेटमेंट. ओके, तो पहले सी और डी ऑप्शन चेक किए जाते हैं. और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको ए and they are saying it is a row matrix with the order 1 is to 4, right? So reason is a matrix having one row and any number of columns is called a row matrix. Yes, the definition of row matrix is correct. That is a matrix having one row and any number of columns is row matrix. Now a matrix में भी वन रो है और कितने कॉलम्स दिख रहे हैं हमको. 4, 1, 2, 3 and 4 columns are there. So this is correct that the order is 1 is to 4 and it is a row matrix. So again both are related together, both are individually correct also. So therefore the option A is correct, that is both are true and AR is the correct explanation of A. So this is how we go for it. Now let's move on to the next. Now this is a question that let A and B belongs to R and B such that the function f given by fx is equal to log of x plus bx square plus ax and x not equal to 0 has extremes value at x is equal to -1 and x is equal to 2. Assertion is f has local maximum at x is equal to -1 and x is equal to 2, and reason is a is 1 by 2 and b is equal to -1 by 4. नाउ हियर द पॉइंट कम्स अप कि हमारे पास असर्जन और रीजन दोनों पहले करेक्ट है या नहीं है. फिर हमें चेक करना है कि वेदर आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट. सो पहले तो हमें
सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो सब चेक करना पड़ेगा। ए और बी की हमें वैल्यू निकाल के भी देखनी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन को आगे चेक कर सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, यू कांट से इट डायरेक्टली। ओके, तो असर्जन रीजन में भी सॉल्विंग आती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है। सो लेट्स फाइंड एफ डैश एक्स फॉर दिस फंक्शन। लॉग का डेरिवेटिव 1/x, bx square, b is constant, so 2bx, ax का derivative a, right? Now f dash x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या दिए हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट, -1 एंड 2। तो अभी हमें क्या करना है? f dash इज 0 एट एक्सट्रीम वैल्यूज, करेक्ट? तो लेट्स डू इट। सो f dash -1 हम निकालते हैं पहले। So let's put -1 in place of x. So what do we get? -1 minus 2b plus a is 0. Now let's put 2. So 1/2 plus 4b plus a is equal to 0. Now let's solve these two simultaneous equation and get the values of a and b. So I have eliminated a. So this is -3/2 and this is -6b. Now let's calculate it. So -6b is 3/2. So b is -1/4. Let's put this value in any of the two equations and get the value of a. So I'm putting it in first equation. So -1 minus 2 into -1/4 plus a is 0. So -1 plus 1/2 is equal to -a. So minus half is -a. So a is half. So it means ये values तो हमारी correct है. A is half and b is -1/4. So now the point here is we have to find whether this assertion is correct or not. Now local maximum निकालने के लिए what is the condition? We have to show that these are points of maxima. Now these are points of maxima. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें f double dash x निकालना पड़ेगा. So f double dash x हमें निकालना है because that gives you the condition. और उसमें conditions क्या होती हैं कि अगर f double dash x less than 0 है, it's a point of maxima. Okay? और अगर ग्रेटर देन 0 है देन इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पहले तो हम एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। सो विच विल बी व्हाट? 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर और 2bx का डेरिवेटिव 2b। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ b। ओके, नाउ यू कैन पुट इट। सो आई गेट दिस। नाउ अब हम इसमें एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार हम 2 पुट करेंगे। ओके, सो आई एम पुटिंग फॉर -1 first. Okay, so what will you get? -1/1 of course and -1/2. So I get a negative value less than 0. So this shows this is a point of maxima. Now let's find it for f double dash 2. So f double dash 2 के लिए I will put 2. Okay, now -1/4 and -1/2, which is also less than 0. No need to find the entire value. वैसे भी assertion reason and no steps needed. Just only think positive or negative. So this is also a point of maxima. सो दोनों हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हैं। सो दोनों पे हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी ऑफ कोर्स, राइट? सो असर्शन इज आल्सो करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट, बट पॉइंट इज रीजन द करेक्ट आंसर फॉर हैविंग द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज? नो, क्योंकि लोकल मैक्सिमम वैल्यूज के लिए द करेक्ट पॉइंट इज कि एफ डबल डैश एक्स हैज टू बी लेस देन 0। दैट शुड बी द रीजन कि लोकल मैक्सिमम क्यों आ रहा है उस पर। एक्सट्रीम वैल्यूज आ रहे हैं, एक ही वैल्यू भी करेक्ट है, बट लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम, उसके लिए क्या कंडीशन होती है? एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमा। तो इसलिए दोनों करेक्ट हैं, बट it is not the correct explanation of A, right? So this is how do we link it together. तो पहले individual check करिए, इसके बाद go for the connection. Now let's go for the next. So A, B, C हमारे पास तीन matrices हैं. Now we have to check whether the given orders के according CA और BA का sum will be defined. Okay, if n is equal to 3 and m is equal to 3. Then multiplication of two matrices is defined
if the number of columns in A is equal to number of rows in B. तो रीजन तो ट्रू है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया. नाउ दैट कम्स टू असर्शन, तो उसके लिए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए सॉल्व करते हैं. m और n का वैल्यू 3 है. ओके, तो लेट्स राइट द ऑर्डर्स फर्स्ट. तो a का ऑर्डर तो पूरा हमें गिवन है 3/1. b का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 into 3 एंड c का ऑर्डर हो जाएगा 3/3. ओके, सो 3/3, 2/3 और 3/1 सी बी और ए के ऑर्डर्स हो गए. नाउ सी ए को अगर हम डिफाइन करें, सो सी का ऑर्डर है 3/3 और ए का ऑर्डर है हमारे पास 3/1. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टेंट ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स. जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें तो सी ए का ऑर्डर आ रहा है हमारे पास 3/1. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर बी ए. पहले आपको बी का ऑर्डर लिखना है, फिर ए का ऑर्डर लिखना है. कीप दैट इन माइंड. ओके, सो बी का ऑर्डर कितना है 2/3. आपके पास ए का ऑर्डर कितना है 3/1. तो ऑफ कोर्स दोनों डिफाइंड है. ओके, तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या बनेगा 2/1. सो बी ए का ऑर्डर है 2/1. नाउ कैन यू टेल मी, कैन वी ऐड दीज टू मैट्रिक्स? नो, एडिशन डिफाइन नहीं है. व्हाई? बिकॉज वी कैन ऐड ओनली द मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. ओके, so same order की ही matrices can be added, so we can add only matrices of same order. So A is false and R is true. A false है, इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, उसका करेक्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि सी ए प्लस बी ए इज डिफाइंड. सी ए प्लस बी ए इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द ऑर्डर ऑफ सी ए एंड बी ए इज डिफरेंट, so we cannot add it. So A is false and R is true. Now we come to the next. The slope of the normal to the curve is -1 at x is equal to -1, and slope of the normal to the curve at point alpha beta is given by so and so. Now पहले हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चेक करना पड़ेगा कि क्या है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मल का, टेंजेंट का नहीं. सो नॉर्मल का स्लोप होता है -dx/dy, which is nothing but minus of the reciprocal of dy by dx. Okay, now let's find dy by dx then for the curve. So the curve equation is given to you. So let's find dy by dx. So 4x minus 5. Now we need to find this value at x is equal to -1. So let's put, so -4 minus 5, which is -9. So the slope of normal is the reciprocal with the negative sign. तो slope of normal कितना हो जाएगा -1/-9, which is 1/9. So here again our first statement is wrong. That is the slope of normal is this. Now let's check for reason. वैसे तो आप क्लियर है कि A is false or it's true, क्योंकि दोनों false का कोई ऑप्शन नहीं है. But still let me clear it, so because question can come in any form. Suppose assertion true, then how will you check is it correct or not? So slope is given by, slope of the normal of the to the curve at point alpha beta is given by so and so. So now the point is कि आपके पास दिया गया, अभी आप बोलेंगे मैम ये कैसे ट्रू हो सकता है. ओके, सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप का मतलब यहाँ पे है इक्वेशन से, सॉरी, राइट. सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ओके, टू द कर्व एट पॉइंट अल्फा बीटा इज गिवन बाय सो एंड सो. सो जो आपका इक्वेशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? y minus y1 is equal to minus dx upon dy x minus x1. This is what you all have learned, right? ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. x1 y1 की जगह हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा है. So let's write it here. So this is my beta and this is my alpha, right? So now minus dx upon dy. इसकी भी चेकिंग कर लेते हैं. सो पहले हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, राइट. सो नाउ dx अपॉन dy को अगर हम इधर लेके गए तो हमें क्या मिलेगा? dy by dx इंटू y माइनस बीटा.
और dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे निकालते हैं, गिवन पॉइंट पे, तो वो हमारा अल्फा बीटा है. नाउ इज इक्वल टू माइनस एक्स, आई राइट इट इन ब्रैकेट. Now, if I take this to this side, becomes plus. So, this is the correct equation, right? So, correct equation is this. So, slope of the normal is minus 1, no. And is the equation correct? Yes. So, A is false and R is true, right? But दोनों में आपस में क्लैरिटी रिलेशन एज सच नहीं है, क्योंकि पहले में हमें सिर्फ स्लोप निकालना था, दूसरे में हमें इक्वेशन निकालना है. Now let's do the next. A, B, and C are three square matrices of same order such that AB is invertible, right? So if AB and AC both are equal, then AB is equal to C, and the reason is A is invertible. Now the point here is आपके पास थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी और भी कंडीशंस होती हैं. का क्या कंडीशन है इनवर्स एग्जिस्ट करने की? पहला तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो गिवन है. दूसरा कंडीशन क्या होता है इनवर्स एग्जिस्ट का, कि डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी नॉन जीरो. ओके, दैट इज अ कंडीशन फॉर द इनवर्स टू एग्जिस्ट. तो हमें जब ये बोला जाता है इट इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब ही ये है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है. सो इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट, राइट? ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो दैट्स योर रीजन. ओके, तो अगर हमारे पास ए बी इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नाउ वी कम टू दिस, ए बी इज इक्वल टू ए सी. अब आप इसको कैसे शो करेंगे? अगर ये गिवन है तो वी हैव टू शो दैट बी इज इक्वल टू सी. तो इज दिस अवर असर्शन ट्रू? सो लेट्स डू इट. सो अगर हमें अपने असर्शन को ट्रू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्री मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? ए इनवर्स. बोथ साइड्स, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे आप दोनों साइड्स पे लगाएंगे, राइट? सो ए इनवर्स ए इनवर्स ए यहाँ भी आ जाएगा. और ये क्या होगा? आई, बिकॉज A is invertible, right? So IB into IC, that is identity matrix. आप कोई भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, you get the answer matrix itself. So B is equal to C. और सेकेंड स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, A इनवर्स एग्जिस्ट. तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो बोथ आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. So that is your option A. Now let's move on to the next. Now this is based on average cost, marginal cost and all. So if the average cost of producing X units of an item is given by so and so, then the marginal cost of producing 5 units is 160. तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमें दो चीज़ें करना है, बट एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में एक चीज़ आती है कॉस्ट फंक्शन. सो एवरेज कॉस्ट से पहले हम कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे और फिर मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन. ओके, सो हमारा जो रीज़न है दैट इज इंडिविजुअली करेक्ट, कि मार्जिनल कॉस्ट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, दैट इज करेक्ट. नाउ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है एवरेज कॉस्ट इनटू द नंबर ऑफ कमोडिटीज. करेक्ट? तो अभी हम कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं पहले, दैट इज वी विल मल्टीप्लाई अवर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट विथ एक्स. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? ये सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन में दिए हैं स्टूडेंट्स हमने, बट दे कैन आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर 2 मार्कर्स एज वेल. So now this is your cost function. Now for marginal cost, we will have to find its derivative. So let's check the derivative also for this. So what will be the answer? 3 3 are 9x square minus 14x plus 5. 11 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. Now we have to find marginal cost when x is 5, because they have given here in a 5 units. So let's put x as 5. So 9 into 25 minus 14 into 5 plus 5. So what do you get here? 2 to 5, right? So 2 to 5 minus 2 to 3, 230 plus 70. So what do you get here? 160, right? So what is the answer for you? So A is correct, right? A is true and your reason is also correct.
Correct? So both are true and it is the correct explanation. So A option is correct, right? So this is what you have the answer. D is not correct, A is correct. That is both A and B are true and it is the correct explanation of A. So this is how you go for it. Now let's move on to the next. Now the assertion is given to you, the two matrices are there and they are equal to each other. So then the value of x is 1. So two matrices A and B are equal, of same order are said to be equal if Aij is equal to Bij. So that's correct. इक्वल मैट्राइसेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल. सो दीज वन इज परफेक्टली फाइन. नाउ अगर हमें असर्शन को सॉल्व करना है, आर वी गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट? यस. सो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बट पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या असर्शन अपने आप में ट्रू है. सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए जो हमारे सारे चार हमारे पास एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, चारों को सेटिस्फाई करें. ओके, सो लेट्स चेक, क्योंकि तभी दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो अभी आप इसमें हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये असर्शन है. तो आप सिर्फ वन पुट करके देखिए और देखिए दोनों साइड्स मैच कर रही हैं कि नहीं. सो इफ आई पुट वन हियर, सो व्हाट विल आई गेट? 1 minus 4 minus 3, करेक्ट. 1 square 1, करेक्ट. 1 is equal to minus 1 plus 2, correct. X cube is 1, okay, because 1 cube is 1. So this is correct. So both the statements are correct and R is the correct explanation of A. So A option is correct. Right? So this is how you do. No need to solve the equations and waste your time. Just check the individual values. Corresponding values ko put kariye and give your answer. Now the next is the equation of tangent to the curve is सो एंड सो. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरा दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. अब दोनों का इंडिविजुअल चेक तो हम करेंगे सॉल्व करके, बट इज द रीजन करेक्ट? नो. करेक्ट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अलग है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अलग है. तो पहले तो हम इंडिविजुअलिटी चेक कर लेते हैं. बट सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना है स्लोप. और स्लोप का मतलब वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पहले तो हम कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो इसका डेरिवेटिव पावर रूल से क्या आएगा, दिस सेम विल इट विल गो हियर, बट बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, तो साथ में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और 2 का डेरिवेटिव 0. नाउ लेट्स डू इट. सो 2 बाई 3 एक्स रेज टू minus 1 by 3 is equal to minus 2 by 3 y raised to minus 1 by 3 dx, y by dx. Right? So 2 by 3, 2 by 3 cancels out. Now here the point is at 1, 1. At 1, 1 मतलब dy by dx का वैल्यू, चलिए पहले तो हम वो लिख लेते हैं, dy by dx का वैल्यू. So dy by dx का वैल्यू हमने लिख लिया, which is minus x raised to minus 1 by 3 upon y raised to minus 1 by 3. Now point हमें दिया गया very simple point 1, 1. So in place of x and y put 1, 1. So what do you get? Minus 1 is the answer, because 1 raised to anything is 1. Very simple. So dy by dx is minus 1 और dy by dx क्या होता है? Slope of tangent. So slope of tangent is minus 1. So minus dx by dy ये क्या होता है? Slope of normal, which will be also minus 1 upon the reciprocal. So that is 1. Correct? So minus 1 का reciprocal minus 1 होता है, but उसका negative लेना है, so that will be 1. Now here we come with the equation. So equation क्या होती है हमारे पास? y minus y1 is equal to mx minus x1. और x1 y1 हमारे पास क्या है? 1, 1. Okay, now we just have to put m to get the value of the corresponding tangent and normal. So let's put it. So y minus 1, ये पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं टेंजेंट का. Okay, let's try it out. So what do you get here? Y plus x. So 1 plus 1, 2. Okay, so this is your tangent calculation. Correct?
नाउ लेट्स डू इट फॉर नॉर्मल. नॉर्मल का भी सेम है बट स्लोप आप चेंज करेंगे बस. सो y minus 1 and your slope is 1. So what do you get? Y minus x is equal to 0. So let's see. So here it is given y plus x. So that is wrong. So our assertion is true, but reason is false. So that goes for C. Right? Assertion is true and reason is wrong. So now we come to the 10th question. So A and B two symmetric matrix है हमारे पास. ऑर्डर 3. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल. तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है. नाउ वी कम टू असर्शन फर्स्ट. हमें ए बी ए एंड ए बी ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है. तो जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो हमें उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है. सो लेट्स डू इट फॉर द फर्स्ट वन. सो इसका ट्रांसपोज लेंगे. ओके. सो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ट्रांसपोज में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए बी ट्रांसपोज अगर आप ले रहे हैं सो इट विल बी ओपन एज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ओके. ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. सो ये आपका एक मैट्रिक्स है ए, सिंगल मैट्रिक्स है, और बी ए. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. अभी हम फिर से लगाएंगे इसमें ट्रांसपोज का रूल. सो दिस बिकम्स दिस. So now this can be written as ABA. अब आप ब्रैकेट तो कहीं भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर. सो नाउ दिस शोज दैट इट इज सिमेट्रिक. नाउ लेट्स डू फॉर द नेक्स्ट. ए बी ए, इसका भी हम क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज. सो व्हाट विल यू गेट? ए again we use the rule. Now again we put the things. So here we can put the bracket. Right? So this is what we get. So this is important for us that they are symmetric. So this is true. Right? Now let's move on to the next part. AB is symmetric matrix if matrix multiplication of A with B is commutative. So let's do it. तो सिमेट्रिक के लिए अगेन चलिए, ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिखा था, इसी से कर लेते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए अगेन वी हैव टू शो कि इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. क्या प्रूफ करना है हमें? ए बी ट्रांसपोज इज ए बी. लेकिन इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी ए. लेकिन बी ए विल बी इक्वल टू ए बी इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद बी इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो ये हमें गिवन है कि अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है. तो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हमेशा ए बी ट्रांसपोज विल बी कम्यूटेटिव. सॉरी, ए बी ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक इफ ए बी विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक इफ देयर मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. तो दोनों अपने आप में करेक्ट हैं. राइट? सो दोनों अपने आप में करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने ये कहीं कोई फैक्ट यूज ही नहीं किया है इसको. राइट? सिर्फ हमने अपना कॉन्सेप्ट यूज किया है कि ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. इट्स ट्रू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉट C. So this is how do we go for it. So this was your part 1. I hope you all have understood it. We'll be coming up with part 2 with more assertion reason questions. Okay, so if you have liked it, do share and subscribe. Thank you everyone.